Glory to the name of the Lord. Worthy is the Lamb on the throne, slain from the beginning of the universe, and by virtue of his precious blood he has redeemed us unto himself. That Lamb is worthy. Heaven Glory to the Lamb of God. Heaven sings two songs, the song of Moses and the song of the Lamb. Two songs are sung in heaven, the song of Moses and the song of the Lamb. Hallelujah. And we will sing the song of Moses and the song of the Lamb throughout eternity as we stand before the majestic throne of the Lamb. Hallelujah. Redeemed by his precious blood, arrayed in his glory and splendor, all through ages shall be with the King of glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dhanyavad. We bless you, Lord. We praise your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we bless you. We bless you. We bless you, Lord. We bless you, Lord, Jesus of Nazareth. We bless you. We bless you, Lord Jesus of Nazareth. We bless your holy name. Jesus Christ, the King of glory. We bless you. Jesus Christ, the King of glory. We bless your name. Jesus Christ, the King of glory. We bless your name. Jesus Christ, the King of glory. We bless your name. Jesus Christ, King of glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, King of glory. Hallelujah. 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 Worship the Lamb. We worship the Lamb. We worship the Lamb. Lord, we worship the Lamb. Worship the Lamb. Worship the Lamb. We worship the Lamb. Worship the Lamb. Worship the Lamb. We worship the Lamb. We worship the Lamb. We worship the Lamb. Hallelujah. 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 We worship you. Worship you. Worship you. Worship you. Hallelujah. 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 We worship the King of glory. We worship your blessed name, Lord, this morning. We exalt you. We exalt you, exalt you, exalt you, Lord. We exalt your name, we exalt your name, we exalt your name. We exalt your name, we exalt your name, we exalt your name. We exalt your name, we exalt your name, we exalt your name, we exalt your name. We exalt your name, we exalt your name, we exalt your name, we exalt your name. Hallelujah, hallelujah. We exalt your name, Lord, we exalt your name, exalt your name. Hallelujah, hallelujah. We exalt you, exalt you, exalt you. Hallelujah. Lord, we worship you, worship you, worship you. Lord, we praise you, praise you, praise you, praise you, praise your name. We praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Lord, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। परमेश्वर के जलाली अद्भुत जयवंत मेमने तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह तेरे सिंहासन के सन्मुख हम तेरी स्तुति के लिए आते हैं, तेरी इबादत के लिए, तेरी परस्तिश के लिए, तेरी आराधना के लिए आते हैं।
परमेश्वर के वध किए हुए मेमने, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तेरा जलाली नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। कल शाम मैं आपसे एक वचन शेयर कर रहा था। शैतान की इच्छा क्या थी, शैतान की इच्छा अभी क्या है, और फ्यूचर में, भविष्य में शैतान की इच्छा क्या होगी। हालेलुया। बहुत अद्भुत एक संदेश परमेश्वर की आत्मा ने हमें दिया। शैतान की इच्छा क्या थी, क्या है और क्या होगी। और हमने देखा कि वो ट्रेड करता था यहोवा परमेश्वर के पवित्र पहाड़ पे, आराधना, वर्शिप को हैंडल करता था, वर्शिप को। और वो वर्शिप को हैंडल करता था स्वर्गदूतों की। हालेलुया। बाइबल में ओफनीम नाम के दूत हैं, इज़िकियल नबी की पुस्तक में ओफनीम। बाइबल में सराफीम नाम के दूत हैं, सराफीम हैं। यशाया की पुस्तक 6 अध्याय, इज़िकियल की पुस्तक 1 से 3 में ओफनीम है। इज़िकियल की पुस्तक 3 अध्याय में, 4 अध्याय में हयात्स हैं, हिब्रू में हयात्स, लिविंग बीइंग। बाइबल में खरुबीम हैं, खरब्स हैं। बाइबल में लिविंग क्रीचर्स हैं विद 4 फेसेस। हालेलुया। बाइबल में आर्क एंजल्स हैं, 3 के नाम हैं जो रहे थे, गैब्रियल, माइकल एंड हीलियल, जिसका नाम है लूसीफर। तो मैंने बताया 3 एलिमेंट हैं हमारी आराधना के। हम आराधना में वर्शिप करते हैं, स्तुति करते हैं। वर्शिप को हैंडल करता था हीलियल, यहोवा को अर्पण करने के लिए। अय्यूब 38:7, 2 ग्रुप के अंदर पूरे होस्ट ऑफ हेवन यहोवा के लिए गाते थे। मॉर्निंग स्टार एंड बिनाए हा एलोहीम, अय्यूब 38 वर्स नंबर 7। मॉर्निंग स्टार यूज्ड टू सिंग बिफोर गॉड एंड बिनाए हा एलोहीम यूज्ड टू शाउट। And Lucifer would, his name was Heliel, he used to present all the worship, all the adoration, all the honor, all the glory, all the power, all the strength, सारी आराधना, स्तुति, प्रशंसा, यश, गरिमा, महिमा, इसे हीलियल, लूसीफर, सब स्वर्गदूतों की इकट्ठा करके यहोवा को अर्पण। लेकिन ये उसकी ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेड जो वो करता था उसमें इनिक्विटी, what was the iniquity in the trade? That was that he started keeping the worship of the Lord unto himself. He started stealing the glory of the Lord. वो यहोवा के जलाल को चोरी करने लगा। हालेलुया। और उसकी डिज़ायर थी टू बी वर्शिप्ड। ही वॉन्टेड टू बी वर्शिप्ड लाइक याहवे। तो हम देखते हैं कि जो इनिक्विटी थी उसके अंदर, वो 5 आईज हैं। आई विल एक्सॉल्ट माई थ्रोन अबव द थ्रोन ऑफ द ऑल, अबव द थ्रोन ऑफ एल लियोन। यहोवा के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। मैं तारागणों के पार हो जाऊंगा। मैं पवित्र पर्वत के ऊपर शिखर पे चला जाऊंगा। 5 आईज हैं 14 अध्याय यशाया की पुस्तक में। ये पांचों की पांचों आईज हैं सेल्फ प्रमोशन की, सेल्फ एक्सॉल्टेशन की, सेल्फ ग्लोरी की। ये है पाप। हालेलुया। ये है बदकारी, इनिक्विटी। तो उसकी डिजायर थी इटर्निटी में टू बी वर्शिप्ड, एंड हिज डिजायर इज राइट नाउ टू बी वर्शिप्ड, and his desire will be in the times to come to be worshipped. That is what made God kick out Satan from the holy mountain like an abominable and disgusting thing, because there was iniquity in his trading. The worship, the adoration, the praise, the glory, the honor
the strength and the majesty that all the angelic being. You know, Bible talks about Ophanim. As I said, there is a Hebrew word Ophanim. Then Bible talks about Seraphim in Isaiah chapter 6. Bible talks about Hayat, in Hebrew Hayat. They are the living creatures. In Greek, in book of Revelation, they are called Zoe, living creatures. But in Hebrew, Hayats. And then there are archangels. Then Bible talks about thrones, powers, principalities. Not only in the infernal council, but also in the divine council of God. All these ranks of the angelic being were there. They all used to worship God of Israel. And Heliel, whose name in the Vulgate translation in the Latin is Lucifer, but his name in original Hebrew is Heliel. So these were three powerful archangels: Heliel, Gabriel, and Michael. Michael, Heliel, which is Lucifer, and Gabriel. So I told you that there are three components of a worship unto God. We worship Him, then we pray before Him. We worship, we pray, and then we learn from His Word. These are three components of any spiritual service. So worship was handled, worship was taken by Heliel before the throne of God. Hallelujah. And then prayers were answered. The answer to the prayers are brought by Michael the archangel. We find it in the book of Daniel. And then the word, the message, used to be brought by Gabriel. Gabriel will bring the message from the Lord. तो ये मैंने आपको बताया कल. लेकिन ये जो link where it broke, this spiritual service, it broke in worship. Because Satan hindered with a polluted heart and he corrupted his trading. It was filled with violence and God Almighty kicked him out. परमेश्वर ने उसे उस पवित्र पर्वत से गिरा दिया. So we meditated on what his desire was, what his desire is right now, and what his desire will be. Three aspects we meditated on. जो लास्ट का उसका एस्पेक्ट है, what will Satan's desire be in the future? Satan की फ्यूचर में डिज़ायर क्या होगी? हालेलुया. Hallelujah. What will his desire be in the future? उसकी भविष्य में डिज़ायर क्या होगी? तो मैं आपको वचन देना चाहता हूँ. मेरे संग निकालिए जल्दी से रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, और प्रकाशित वाक्य में से मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ. प्रकाशित वाक्य निकालिए सबसे पहले, उसका 13 अध्याय. प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय और उसका 4 वचन. प्रकाशित वाक्य 13 का 4 सुनिए. And they worship the dragon which gave power unto the beast, and they worship the beast. पृथ्वी के लोग क्या करेंगे भविष्य में? अभी मैंने आपको वचन में बताया, परमेश्वर इज़राइल से क्या कहता है बार बार? अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, मेरी विधियों, मेरे हुक्मों को और मेरी व्यवस्था की पालना मन चित लगा के चौकसी से नहीं करोगे, और तुम पराये देवताओं की ओर मुड़ोगे और अन्य जातियों जैसे शिनाले के गंदे काम करोगे, तब प्रभु यहोवा क्या कहता है? प्रभु यहोवा कहता है दंड मैं तुम्हारे ऊपर भेजूंगा. और वो दंड कैसा है?
बाइबल में पूरे पुराने नियम में ये लिखा हुआ, और नए नियम में भी यही है। आप अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आंखें खुलें तब वचन को आप जानने पाएंगे। प्रभु कहता है इज़राइल को, मैं तुम्हें सजा दूंगा। और क्या, कैसे सजा दूंगा? प्रभु कहता, मैं तुम्हारे बीच में, मैं तुम्हारे खिलाफ तलवार भेजूंगा। आई विल सेंड द सोड। मैं तुम्हारे बीच में अकाल भेजूंगा। आई विल सेंड द फैमिन। और मैं तुम्हारे बीच में मरी भेजूंगा, प्लेग। 3 चीज़ें करूंगा, सोड, तलवार, फिर उसके बाद क्या है? अकाल, फिर उसके बाद क्या है? मरी। और फिर प्रभु कहता है, यदि तुम तभी मेरी ओर नहीं मुड़ोगे तो मैं जंतु भेजूंगा। हिंदी पंजाबी में लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा बीस्ट। बीस्ट, ये जंतु है यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 4 वचन। इसमें एक तो ड्रैगन है, बड़ा सांप है, और दूसरा है बीस्ट, जंतु। ये आ गया है। पहले लोग ड्रैगन की, सांप की पूजा करते हैं, फिर लोग उस जंतु की पूजा करते हैं। एक बीस्ट है। ये बीस्ट क्या है? ये बीस्ट है एंटी क्राइस्ट। ये बीस्ट एक व्यक्ति है और ये बीस्ट एक सिस्टम है। ये एक नई सरकार, नई गवर्नमेंट, नई व्यवस्था दुनिया पे आने वाली है, जिसको दुनिया में, धरती में दुष्ट लोग जल्दी लेकर आ रहे हैं। वो शैतानी लोग जिन्हें हम लूसीफेरियन कहते हैं, फ्री मेसनरी कहते हैं, इल्यूमिनाटी कहते हैं, लिबरल लोग कहते हैं, जो सोशलिज्म के द्वारा, जो लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के द्वारा, जो रिच लोग हैं, जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को होल्ड करते हैं, जो ये जो पिरामिड है, गीज़ा के पिरामिड, इसके टॉप पे जो बैठे हुए लोग हैं, एलीट लोग, वो इस बीस्ट के सिस्टम को अशर कर रहे हैं। ये बीस्ट का सिस्टम जल्दी आ जाए। तो प्रभु ने कहा, मैं तलवार भेजूंगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में क्या देखते हैं 6 अध्याय में? जब मेमना यीशु मसीह मोहरें तोड़ता है, पहला घोड़ा जो है, दूसरा घोड़ा, 4 घोड़े हैं, पहला सफ़ेद है, अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरा घोड़ा लाल है, उस पर जो बैठा उसके हाथ में तलवार है। प्रभु ने कहा, मैं तलवार भेजूंगा, लड़ाई। फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में दूसरा घोड़ा काला है, उस पर जो बैठा उसके हाथ में तराजू हैं, वो तोल रहा है, और आगे लिखा है, खाने पीने की चीज़ों का भाव बहुत महंगा हो गया है। आप देखेंगे आने वाले समय में हाइपर इन्फ्लेशन आएगी, खाने पीने की वस्तुओं के भाव बहुत महंगे हो जाएंगे। फिर जो चौथा हॉर्स है वो पेल ग्रीन लिखा है, पंजाबी में शायद नुकरा लिखा है, लेकिन उसका नाम दिया गया है ग्रीक में। चारों का नाम, तीनों का नाम नहीं है पहले, चौथे का नाम है, उसका नाम है क्लोरोस। ग्रीक भाषा में क्लोरोस का मतलब है, क्लोरोस एक केमिकल है, क्लोरोस से क्लोरीन निकलता है, क्लोरोफॉर्म निकलता है, जो बेहोशी का सब्सटेंस है, क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोस बायोलॉजिकल वॉर को दिखा रहा है। ये पृथ्वी पे बायोलॉजिकल वॉर चल रही है। बहुत से लोग ये मानते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज मानती हैं कि ये वेपनाइज्ड वायरस है, ये लैब में वेपन की तरह तैयार किया गया वायरस है जो पृथ्वी पे आया है, और पूरी पृथ्वी के ऊपर इसने मैनकाइंड को डरा दिया है भयंकर रूप से, और पूरी दुनिया जैसे थम गई है इस वायरस की वजह से। हर एक वैल्यू रीडिफाइन हो रही है, लोगों का लाइफस्टाइल रीडिफाइन हो गया, जॉब्स जा रही हैं, इकॉनमी क्रैश कर रही हैं, लोगों की सोशल लाइफ चेंज हो रही है। हमने देखा, जिसको किसी को कोरोना हुआ, किसी के परिवार के सदस्य में, तो उसके परिवार के लोगों ने उसको छूना नहीं चाहा, उसके पास जाना नहीं चाहा। कईयों ने तो अपनी माँ या अपने बाप का अंतिम संस्कार तक नहीं किए। ये वायरस क्या कर रहा है? लोगों के अंदर जो सेल्फिशनेस है, लोगों के अंदर जो गंदी नेचर है, उसको बाहर लेकर आ रहा है ये वायरस। बहुत से लोग निष्ठुर हो गए हैं, करुणा, दया, भलाई उनके हृदय से चली गई है।
बहुत से लोग स्वार्थी केवल अपने लिए वस्तुएं चीजें इकट्ठी करके रख रहे थे। तो ये भाई और बहनों प्लेग है जो पृथ्वी पे चल रही है। प्रभु ने कहा कि मैं तलवार भेजूंगा, फिर प्रभु ने कहा मैं अकाल भेजूंगा, फिर प्रभु ने कहा मैं मरी भेजूंगा। प्लेग ये मरी है। और प्रभु ने कहा अगर तुम फिर भी नहीं पलटे तो मैं बीस्ट भेजूंगा। बीस्ट का मतलब मैंने प्रकाशित वाक्य 13:4 में आपको दिखाया। वहाँ पे है ड्रैगन, बड़ा अजगर सांप, और उसके बाद है बीस्ट, जंतु। दुनिया क्या करती है? ड्रैगन की पूजा करती है और दुनिया फिर जंतु की पूजा करती है, बीस्ट की। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि शैतान की इच्छा क्या होगी भविष्य में। हमने देखा कि उसकी इच्छा क्या थी, उसकी इच्छा क्या है प्रेजेंट में। वो यीशु मसीह से भी वर्शिप चाहता था। मत्ती 4:9 में वो यीशु मसीह को कहता मेरे आगे झुक और मुझे सजदा कर। और यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 13:4 में, सुने क्या लिखा है, एंड दे वर्शिप द ड्रैगन विच गेव पावर अनटू द बीस्ट एंड दे वर्शिप द बीस्ट। और फिर पृथ्वी के सारे लोग, पृथ्वी की सब कौमें, पृथ्वी की सब जातियाँ, पृथ्वी के सब कुल गोत्र के लोग पहले सांप की पूजा करते हैं, ड्रैगन की। उसके बाद ड्रैगन जो है वो बड़ा अजगर सांप है, वो अपनी शक्ति जंतु को देता है, बीस्ट को। फिर पृथ्वी के सारे लोग झुकते हैं और बीस्ट की, जंतु की उपासना करते हैं। और पृथ्वी के सब कुल गोत्र भाषा जाति के लोग उस बीस्ट के आगे, उस जंतु के आगे झुकते हैं। वो जंतु कैसा है? प्रकाशित वाक्य 13:2 में लिखा है, द बीस्ट विच आई सॉ वॉज लाइक अनटू अ लेपर्ड। वो चीते की तरह है। हिज फीट वर लाइक द फीट ऑफ बेयर। उसके जो पाँव हैं, पंजे हैं, वो भालू की नाई हैं। एंड माउथ वॉज लाइक द माउथ ऑफ अ लायन। और उसका मुंह जो है वो शेर की तरह है। एंड ड्रैगन गेव हिम हिज पावर एंड हिज सीट एंड हिज ग्रेट अथॉरिटी। जो अजगर है वो सारी शक्ति, बल, पराक्रम इस जंतु को देता है जो दुनिया पे राज्य करेगा। इस संसार पे राज्य करने के लिए आ रहा है वो बीस्ट। पूरा ब्रह्मांड उसकी पूजा, स्तुति, आराधना करेगा। और एक खास बात आपको बताऊं, वो क्या करेंगे? प्रकाशित वाक्य 13:4 में लिखा है, वो उसकी पूजा करेंगे, वर्शिप करेंगे, और ये कहेंगे, हु इज़ लाइक अनटू द बीस्ट, हु इज़ एबल टू मेक वॉर विद हिम। वो कहेंगे कौन है इस जंतु के नाई, कौन है जो उससे युद्ध कर सकता है। पूरी दुनिया का सिस्टम, पूरी दुनिया ग्लोबली कनेक्ट हो जाएगी और पूरी दुनिया पे ये व्यक्ति राज करेगा। ये बहुत जल्दी समय आ रहा है। डिजिटल दुनिया होगी, एक करेंसी होगी, एक यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होगा, और ये पूरे विश्व पे राज्य करेगा। और लोग कहेंगे कौन है इसके जैसा और कौन इसके संग युद्ध कर सकता है। आपको मालूम ये कौन सी जगह से लिया हुआ कलाम है? अगर आप पढ़ेंगे 15 अध्याय निर्गमन की पुस्तक पढ़िएगा, पूरा अध्याय पढ़िए। 15 अध्याय निर्गमन, एक्सोडस, कूच की किताब। प्रभु यहोवा लाल समुद्र को फाड़ देता है और सूखी धरती पैदा करता है उस विशाल समुद्र में। इस्राएली प्रजा विशाल समुद्र पे, सूखी धरती पे चलती हुई निकलती है और समुद्र का विशाल पानी बड़ी दीवारें बन के खड़ा हो जाता है और इस्राएल बीच में से कूच करता है। पानी दीवारें बन के दोनों तरफ खड़ा है। इस्राएली वहाँ से कूच करते हैं। अद्भुत रीति से प्रभु ने पानी को दीवार बना के खड़ा कर दिया है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन और लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ दिया प्रभु ने। पानी कभी अपने आप लॉ ऑफ फ्रिक्शन और लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण कभी दीवार बन के खड़ा नहीं होता है, पर प्रभु यहोवा ने पानी को दीवार बना के खड़ा कर दिया। इस्राएल निकला और वो दूसरे किनारे पहुँचे। फिरौन, उसके रथ और घुड़सवार आए। यहोवा ने महासमुंदर के बीच में फिरौन और उसके घुड़सवार, रथ सवारों को डुबो के मार दिया। फिरौन ने 3 बार ये कहा
कौन है यहोवा मैं नहीं जानता, ना मैं उसकी प्रजा को जाने दूंगा। तो प्रभु यहोवा ने ठाना, मैं फिरौन को अपना परिचय स्वयं दूंगा। और प्रभु यहोवा ने फिरौन को अपना परिचय कि यहोवा कौन है ये महासमुद्र के बीच में बताया। और फिरौन उसके रथ घुड़सवारों को महासमुद्र में डुबो के मार दिया। इस्राएली प्रजा के सारे शत्रुओं का विनाश हो गया। मिस्र साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। यहोवा ने अपनी प्रजा को निकाल लाया। वो लाल समुद्र के दूसरे किनारे पहुँचे और मूसा ने यहोवा के लिए गीत गाया। 15 अध्याय पढ़िएगा। मिरियम टैम्बरन खंजरी बजा के वो भी गाती है। और वो क्या कहते हैं, कौन है हमारे यहोवा जैसा। यहोवा पराक्रमी और सामर्थी है, यहोवा योद्धा है। हालेलुया। उसने संग्राम किया, उसने लाल समुद्र को फाड़ा, अपनी प्रजा के लिए सूखी भूमि निकाली। महाप्रतापी यशस्वी सामर्थी यहोवा ने फिरौन और उसके रथ और घोड़ों को समुद्र के बीच में डाल दिया। कौन है हमारे सामर्थी परमेश्वर यहोवा जैसा, कौन यहोवा से युद्ध कर सकता है। ये तब गाया गया। ये मूसा का गीत है। लेकिन जो आ रहा है शैतान दुनिया पे राज्य करने के लिए, पूरी दुनिया उसकी पूजा करेगी और उसका निशान अपने माथे पे और अपने राइट हैंड पे लेगी। उस बीस्ट की, उस जंतु की और उस सांप की, अजगर की पूजा करेगी। ये उसकी अभिलाषा थी, इसलिए उसे यहोवा परमेश्वर के पवित्र पर्वत से गिराया गया, यहोवा के पवित्र अदन से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी ट्रेडिंग में, व्यापार में इनिक्विटी, अवान पाया गया और यहोवा ने अपवित्र और तुच्छ जान के उसे गिरा दिया। ये उसकी अभिलाषा थी कि जैसे यहोवा की उपासना होती है वैसे उसकी उपासना हो। और उसकी इच्छा है, उसने यीशु मसीह से एक्सप्रेस की कि मेरे आगे झुक और सजदा कर, और ये उसकी इच्छा पूरी करेगी दुनिया। 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य के 4 वचन से पढ़िएगा। पूरी दुनिया उसकी उपासना करेगी। वो पूरी दुनिया को अपनी मोहर लगाएगा। और दुनिया कौन सा गीत गाएगी? मूसा का गीत। मूसा का गीत यहोवा के लिए गाया जाता है, लेकिन दुनिया मूसा का गीत शैतान के लिए, ड्रैगन के लिए, ड्रैगन जो बड़ा सांप और जो जंतु है जिसको ड्रैगन पावर देगा, उस जंतु के लिए दुनिया ये गीत गाएगी। पढ़ लीजिए रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 4 वचन, और रेवलेशन 12 में देख लीजिए ड्रैगन कौन है। रेवलेशन 12 में आपको ड्रैगन दिखाई देता है। रेवलेशन 12 की 9 में, 13 की 4 में ये गीत जो किसका गीत है? यहोवा का गीत है। ये दुनिया किसके लिए गाएगी? शैतान के लिए गाएगी। और कहेगी कौन है इस जंतु के नाई। क्या कहते हैं 13 की 4 में? एंड दे वर्शिप द ड्रैगन विच गेव पावर अनटू द बीस्ट, दे वर्शिप द बीस्ट सेइंग। जंतु की पूजा कर रहे हैं। कैसे, क्या कह के कर रहे हैं? हु इज़ लाइक अनटू द बीस्ट, इस जंतु के जैसा कौन है? हु इज़ एबल टू मेक वॉर विद हिम, कौन उससे लड़ाई कर सकता है? पृथ्वी की कौमें, शैतान की गंदी रूह उनके अंदर समा गई है। पृथ्वी की कौमें, कुल, जाति, भाषा, पृथ्वी के अलग अलग मज़हब, धर्म, जाति, रंग के लोग शैतान की उपासना कर रहे हैं, बीस्ट की, और कह रहे हैं कौन उससे, कौन उसके जैसा है, कौन उससे लड़ाई कर सकता है। तो स्वर्ग में जब ये, हालेलुया, स्वर्ग के अंदर क्या होता है? स्वर्ग के अंदर ये आवाज़ सुनाई देती है कि पृथ्वी के लोग ये क्या बातें कर रहे हैं। हालेलुया। तो क्या होता है भाई और बहनों? हालेलुया। आइए मेरे साथ परमेश्वर के कलाम में। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य में आइए और उसका पढ़िए 19 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 और उसके 11 वचन से। प्रकाशित वाक्य 19 के 11 से। तो पृथ्वी के ऊपर ये कोहराम मचा रहा है बीस्ट, जंतु और अजगर,
और पृथ्वी की कौमें उसकी उपासना कर रही है और कह रही हैं कौन है इस जंतु के जैसा, कौन इससे युद्ध करेगा। तो देखिए क्या होता है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 वचन, एंड आई सॉ हेवन ओपन, स्वर्ग खुल जाता है, एंड बिहोल्ड अ वाइट हॉर्स, और एक सफ़ेद घोड़ा। हालेलुया। जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में सफ़ेद घोड़ा है, जो उसके ऊपर बैठा है वो शैतान है, एंटी क्राइस्ट है, वो धोखा देने वाला है। ये आ रहा है अब राजों का राजा सफ़ेद घोड़े पे बैठ के। ये पहले गधी के बच्चे पे बैठ के आया था, हम्बल, दीन, हलीम बन के, लेकिन अब आ रहा है यशस्वी घोड़े पे बैठ के स्वर्ग से। स्वर्ग खुला, एक सफ़ेद घोड़ा है। He that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness doth he judge and make war. The one who is seated on the white horse is faithful and true. ये सच्चा है। जो पहले घोड़े पे बैठ के आता है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में, वो झूठा है, शैतान है, वो बेवफा है, वो अधर्मी है। हालेलुया। और वो झूठ, फरेब, मक्कारी से पृथ्वी के लोगों को डिसीव करता और ठगता है। लेकिन ये जो वाइट घोड़े पे बैठ के आ रहा है, इज फेथफुल एंड ट्रू, एंड इन राइचियसनेस ही डोथ जज एंड मेक वॉर। वो धार्मिकता से न्याय करेगा और लड़ाई करने आ रहा है। हिज आईज वर एज द फ्लेम्स ऑफ फायर, आग की ज्वाला है उसकी आंखें। एंड ऑन हिज हेड वर मैनी क्राउन, उसके सर पे बहुत से मुकुट हैं। एंड ही हैड ए नेम रिटन दैट नो मैन नो बट ही हिमसेल्फ, एक नाम लिखा हुआ है उसका जिसे कोई नहीं जानता, केवल वही जानता है, यीशु नासरी। वही जानता है कि वो क्या नाम है। और लिखा है, एंड ही वॉज क्लोथ्ड विद वेस्चर डिप्ड इन ब्लड एंड हिज नेम इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड। उसने जो वस्त्र पहना है वो लहू के अंदर डूबा हुआ है, खून से रंगा हुआ वस्त्र उसने पहना है, और उसका नाम है द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। And the armies which were in heaven followed him upon the white horses, clothed in fine linen and white and clean. फौजें आ रही हैं उसके साथ, और फौजों ने क्या पहना है? फाइन लिलन। ये जो फाइन लिलन है, ये किसे दी गई है? दुल्हन को। पढ़िए रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 8, एंड टू हर वॉज ग्रांटेड दैट शी शुड बी अरेड इन फाइन लिलन क्लीन एंड वाइट। ये दुल्हन है जो आ रही है दूल्हा के साथ। ये जो फौजें स्वर्ग से उतर रही हैं फरिश्तों की नहीं है। कौन आ रहा है? यीशु मसीह और उसकी दुल्हन आ रही है। हालेलुया। लिखा है हॉर्सेस पे आ रहे हैं बैठ के, क्लोथ इन फाइन लिलन वाइट एंड क्लीन। और क्या है? युद्ध की रणभेरी बच चुकी है, पृथ्वी की कौमें खड़ी हैं, और इब्लीस और शैतानी आत्माएं, सारी बदरुएं, डीमन तैयार खड़े हैं मसीह से संग्राम करने के लिए। क्योंकि कह रहा कौन उससे लड़ाई कर सकता है, कौन उसके सामने ठहर सकता है? जंतु के जैसा कौन है? पृथ्वी की कौमों, पृथ्वी के राजे, पृथ्वी के पॉलिटिशियन, पृथ्वी के इकोनॉमिस्ट, पृथ्वी के हर समाज के लोग, हर भाषा, कुल, गोत्र, जाति के लोग, सब उस जंतु की, बीस्ट की, शैतान की पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं कौन है उसके जैसा, कौन उससे लड़ाई कर सकता है। तो स्वर्ग खुलता है, स्वर्ग से राजाओं का राजा अपनी दुल्हन के साथ आता है। हालेलुया। जलाल का बादशाह ये है जो उससे युद्ध करेगा और उसे हराएगा। हालेलुया। पृथ्वी की सारी जातियां, बहुत विराट फौजें खड़ी होती हैं। उसने मनुष्यों को भरमाया है शैतान ने। हर देश की फौज खड़ी है मसीह से लड़ने के लिए, बड़े बड़े हथियार, असला लेके। यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह की दुल्हन उसके संग संग आ रही है। 14 वचन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 14 वचन। और सब कुछ तैयारी की जा रही है, जैसे मतलब वो रासायनिक हथियार भी इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब भी इस्तेमाल करेंगे, एटॉमिक एनर्जी भी इस्तेमाल करेंगे मसीह के खिलाफ। लेकिन क्या होता है? मसीह आया, एंड आउट ऑफ हिज माउथ गोएथ अ शार्प सोर्ड। उसके मुंह से एक तलवार निकली, चोखी तलवार, और उस तलवार ने पृथ्वी की सारी कौमों को, सारे जो शत्रु फौजें जो खड़ी थी, उसके मुंह से निकली तलवार ने पल में सबको भस्म कर दिया। ही शैल रूल them with the rod of iron. He treadeth the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God. And he hath on his vesture
and on his thigh a name written, King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, ये जलाली नाम उसकी थाई पे, उसकी थाई के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए, फौजें खड़ी थीं, अभी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई, यीशु मसीह ने ख़त्म कर दी। यीशु मसीह की दुल्हन को नहीं लड़ना पड़ा शैतानी फौजों के साथ, उसके मुंह से तलवार निकली और उसकी मुंह की तलवार ने दुनिया को, जो फौजें शैतानी खड़ी थी, उनको नेस्ता नाबूद कर दिया पल में। ये है वो मेमना जो युद्ध करेगा। मैंने आपको बताया कि शैतान को दो तरह के, शैतान जब शैतान नहीं था उसका नाम था हीलियल, और वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाला दूत था। परमेश्वर ने, मैंने आपको वचन में से बताया था, यशाया नबी की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 11 वचन में, और इज़िकियल नबी की पुस्तक 28 अध्याय के 14 वचन में। यशाया 14:11, इज़िकियल 28:14। ये दो वचन बताते हैं। पहला वचन बताता है परमेश्वर ने स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट बनाए, तारों वाले साज बनाए थे, किसके अंदर? लूसीफर के अंदर। फिर यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने वो साज परक्यूशनिस्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसे फ्लूट होती है, विंड इंस्ट्रूमेंट जिनमें हवा भरी जाती है, तार वाले बाजे और हवा भर के बजाए जाने वाले बाजे, जितने भी साज हैं ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये दो ही तरह के हैं पृथ्वी पे, स्ट्रिंग वाले हैं या हवा वाले हैं, जिसमें से विंड जाती है और वो एयर म्यूजिक पैदा करती है। ये दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट शैतान में बनाए थे लूसीफर में। प्रभु ने क्या किया? उसको गिरा दिया। और अब प्रभु ने क्या किया आपको मालूम? शैतान को गिरा दिया परमेश्वर ने अपने पवित्र पर्वत से, और यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पे आया। शैतान परमेश्वर से कहता, अब कौन तेरी स्तुति करेगा? अब कौन वर्शिप लीड करेगा? अब कौन आराधना, स्तुति, भजन, कीर्तन तुझे अर्पण करेगा? यहोवा परमेश्वर ने अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी ली और उसे स्क्वीज़ किया, हालेलुया, और उस मिट्टी से पुतला तैयार किया। फिर यहोवा परमेश्वर ने उसके अंदर फूंक मारी, वो जीवित प्राणी हो गया। यहोवा शैतान से कहता है, ये अब मेरी आराधना करेगा। आदम की जात। यहोवा ने हमारे गले में, आपको मालूम आपके गले में क्या है? डॉक्टर कहते हैं वोकल कॉर्ड्स हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, और आपके गले के अंदर सांस जाती है जिससे आप गाते हैं। दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके गले में हैं, मुंह में, आपके गले में तार वाले बाजे हैं और आपके गले में हवा भर के गाए जाने वाले, बजाए जाने वाले बाजे हैं। ये बाजे आपके अंदर बनाए हैं यहोवा ने, यही लूसीफर के अंदर बनाए थे। तो यहोवा ने परस्तिश, इबादत, प्रभु ने कहा ये मिट्टी अब मेरी स्तुति करेगी। मैं इतना महाप्रतापी हूँ, इतना सामर्थी हूँ, इतना यशस्वी हूँ, सामर्थी रचता हूँ कि मैं मिट्टी से अपनी स्तुति करवा सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ भाई और बहनों? सबसे बड़ा जो हम देखते हैं ट्रेजेडी, वो उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में हुई। शैतान उसी मिट्टी के पुतले की तरफ गया और उसे वरगला के अपनी ओर कर लिया। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, असली युद्ध है वर्शिप का। असली युद्ध वर्शिप का है, आराधना का। शैतान आपकी आराधना को रोकता है। इस समय मैंने आत्मा में देखा है आराधना नहीं है। इस समय बहुत से सेवक, बहुत सी सेवकाइयाँ बहुत बनावटी काम कर रही हैं, दिखावे का। पहले किया उन्होंने, बड़ी बड़ी स्टेज लगा के ऊपर परेडिंग की, अपने गिफ्ट की, दिखावा किया, अपने आप की नुमाइश की, लोगों को अपनी ओर खींचना चाहा, लोगों को अपने संग जोड़ना चाहा, बहुत ड्रामेबाजी की उन्होंने। वर्शिप नहीं, वर्शिप सिखाई भी नहीं इन झूठे नबियों ने, झूठे प्रेरितों ने। सच्ची वर्शिप क्या है? बल्कि इनकी ट्रेडिंग के अंदर जो ये ट्रेड करते थे, झूठे नबी, झूठे प्रेरित, झूठे प्रचारक, जो तेल, पानी, मिट्टी, हर चीज को बेचते थे प्रभु का नाम लगा के। हाथ में डालने वाले रिस्ट बैंड, पानी, तेल, मिट्टी,
और कपड़े पे प्रार्थना करके जो भी बेचते थे, यहाँ तक कि सोफे की बढ़िया सीटें जो प्रेयर सभाओं में होती वो भी बेची जाती थी। लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात करनी है, उसके 10-10, 20-20 हज़ार रुपये जमा करवाए जाते थे। गोल्डन, सिल्वर, डायमंड पार्टनर लोगों को बनाया जाता था, पैसे ऐंठे जाते थे। तो परमेश्वर ने इस दुराचार को देखा, यह ट्रेडिंग के अंदर बदकारी थी इनकी, और बंद कर दिया सब कुछ प्रभु यहोवा ने। देखिए, और ये प्लेग भेजी। प्लेग आती तब है जब प्रभु के लोग भ्रष्ट काम करते हैं, करप्ट काम करते हैं। उनकी ट्रेडिंग के अंदर क्या कहता है प्रभु, तेरे व्यापार के बहुतायत के कारण तुझ में कुटिलता पाई गई और मैंने तुझे उस पर्वत से गिरा दिया। हालेलुया। Satan longed for worship in ageless eternity. That was his desire. He longed for worship. He wanted that the angelic host would worship him. His heart was lifted up. There was iniquity found because of the trading, because of the merchandising that he was doing. He was a covering cherub. He was the anointed cherub. And God created all beautiful, majestic instruments right inside of him. He used to lead the heavenly choirs. The Ophanims, as Ezekiel says in chapter 1. The Hayots, which is living creature. The Hebrew name is Hayots, living creatures. And the Seraphim, Isaiah chapter 6. And the Cherubim. And then the archangel, and then Bible talks about dominion, thrones, powers, principalities, not of the infernal council. The infernal satanic council also has these things. They copy everything that God has. Satan has no creativity. He is a master duplicator. So all these ranks of the angels and the living creatures and the beings that God created in heaven, they would worship God. And Satan would handle the worship and present unto God. But his heart was lifted up. He said 5 eyes. And behind every eye of the devil is desire of self-promotion, self-exaltation, self-marketing, lifting up his own self, not God. And because he was driven by this lust of worship, so God cast him out of heaven as a disgusting, abominable thing. And we find that he had a desire of worship in eternity past. He never relinquished his desire. In Matthew chapter number 4, verse number 9, God incarnated in human body came upon this planet, and he's tempting him. He had the nerve to say unto him, bow thou down before me and worship me. You remember I taught you yesterday, worship is the expression of your love. Our God, the God of the Bible, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, is not worship-hungry God. No, he is not worship-hungry God. He doesn't thrive on your worship, but he is hungry for love. Our worship is an expression of our pure love. Satan's expression of worship was tainted, was corrupted and contaminated because there was iniquity that God detected in him. He was keeping some of that worship, some of that adoration, some of that praise, some of that majesty, some of that glory, some of that exaltation of his name, some of that strength and power unto himself. He desired to be worshipped like Yahweh. So God cast him out. Then he is tempting Jesus, Matthew 4:9. He's saying, bow down before me and worship me. He is very conniving. He's asking the Lord to bow down, kneel down, and then worship me. You see that? He promises the world everything that is in the world. That is why Bible says everything that is in the world is of the devil. He that loveth the world, the love of the Father is not in him. Therefore the word of the Lord says, come out of the world.
This world has a Babylonian system that Satan rules and reigns. And this world offers you everything in three dimensions, in three facets: the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. That is all Satan can offer you. And everything that you will see in this world comprises in these three facets: lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. That's all the devil can offer you. He will come to steal and kill and destroy. And I told you, what will Satan's desire be in eternity? Or in not in eternity, of course, but in the future. In eternity, he'll be annihilated. He'll be bound and thrown in the lake of fire. But in the future, in Revelation chapter number 12, I told you that the dragon, the Nachash, the serpent, has become a large dragon now. And Revelation chapter 13, verse number 4, he gives the power to the beast. And Revelation 13, verse number 2, look at the beast, like the leopard, like the bear, like the lion. Fearsome beast. And dragon gives him the power. And the whole world worships the dragon, the beast. The whole world worships the beast. And says, who is like unto the beast? Who can make war with him? That is the song of Moses. That was sung for Yahweh. Now corrupt, fallen, depraved mankind singing that glorious song for the beast. And they are echoing in the earth, who is able to make war? Who is like unto him? Then Jesus hears it in the heaven. Hallelujah. He talks to Gabriel, and the bride of the Lamb comes along with him. Chapter 19, verse number 11. Heaven opens and Jesus comes down. In a split second, he decimates the beast and the dragon and all the armies that are with him. Hallelujah. We have that stringed instrument he gave to Heliel. The Hebrew word is Heliel. And the same word is translated Lucifer because of the Roman Catholic endeavor. In Vulgate translation, in the Latin translation, his name is superimposed, Lucifer. Hallelujah. God created stringed instruments in him. God created the wind instruments in him. And God has given me and you, the bride of the Lamb, stringed instrument. We have vocal cords. And we have instruments. By the breath that we inhale and exhale, we sing unto the Lord. उसके लिए गाएं, उसकी स्तुति करें मेमने की. हालेलुया. जो मेमने की स्तुति नहीं करेंगे, जिनके नाम मेमने की पुस्तक में नहीं होंगे, उन्हें बीस्ट की पूजा करनी पड़ेगी. बीस्ट की. ये बीस्ट एक व्यक्ति भी है और ये बीस्ट एक सिस्टम भी है जो दुनिया पे आ रहा है जल्दी. ये कोरोना वायरस आपको उधर लेके जा रहा है. बीस्ट सिस्टम को, बीस्ट सिस्टम की थ्रेशोल्ड पे आपको ले जाएगा. तो प्रभु की ओर मुड़ें, तौबा करें. ये करप्शन के कारण, चर्च की करप्शन के कारण, परमेश्वर के कलाम को तोड़ने मरोड़ने के कारण, परमेश्वर के कलाम की मर्चेंडाइज करने के कारण ये कर्स आया है पृथ्वी के ऊपर. तो मुड़िए, पलटिए प्रभु यहोवा की ओर और उसकी स्तुति कीजिए. हालेलुया, हालेलुया. स्तुति और आराधना में संलग्न हो जाइए. थैंक यू जीसस. प्रभु आपको आशीष दे. जय मसीह की.